अभिषेक सर, आपका माइक म्यूट पे है. आई डोंट नो वेदर यू आर स्पीकिंग. योर माइक इज ऑन म्यूट. Yes, sir. Thank you, ma'am. Can you listen me, Tomar sir? Yes, sir. Yes. Should we start, sir? Sir, can we, sir, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, sir, please. Okay. Just a minute. Okay. Thank you. Ayush, please start. Okay, sir. A very warm good morning to all of you present here. Today I, Ayush Kumar Singh, a third-year student of MNNIT, feels privileged to welcome you all to this session on prevention and management of post-COVID effects, a holistic approach under the Office of Dean Student Welfare. Today we have with us our distinguished panel for the session, Dean Student Welfare, Professor K.N. Pandey sir, Faculty in Charge Student Counseling, Dr. Abhishek Kumar, Associate Faculty in Charge, Dr. Ashutosh Mishra, and our esteemed speaker for the session, Professor G.S. Tomar. Professor G.S. Tomar did his BA-MS from Jivaji University, Gwalior with gold medal in 1978. He did MD and PhD in Ayurveda Kaya Chikitsa from prestigious Banaras Hindu University in 1982 and 1986 respectively. Coming to his achievements, he has not left any stone unturned in his successful career life, but to name a few, he has conferred upon MD from Denmark, Fellow of Alternative Medicine from Spain, Fellow of Rashtriya Ayurveda Vidyapith from Ministry of Ayush, Government of India. He has published more than 200 research papers in reputed national and international journals. He is International President of Vishwa Ayurveda Mission, and presently he has been nominated as member Technical Working Group Ayush NTEP Collaboration under Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. So with these words, I would like Professor G.S. Tomar sir to kindly enlighten the audience with his wise words of wisdom. Over to you, Professor. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Om Sri Sheetanath Samarambham Ramanandadi Madhyamam Ashmadacharya Paryantam Vande Shri Guru Paramparam. आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था के यशस्वी निदेशक डॉक्टर राजीव त्रिपाठी जी को और डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर के.एन. पांडे जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कोरोना कालखंड में आज की स्थिति पर जन सामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अपने परिसर के टीचिंग, नॉन टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टूडेंट्स और सभी परिवारजनों को किसी भी प्रकार की ये जानकारी से वो वंचित न रहें, उन सबको इस कार्यक्रम में जोड़ा है। साथ ही साथ हमारे साथ आईआईटी वाराणसी, आईआईटी धनबाद और शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ साथ में एक महावीर इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम कॉलेज के लोगों ने लिंक शायद शेयर किया हुआ है, मांगा हुआ है और संभवतः वो भी जुड़ रहे हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने बातें कहने का जो अवसर प्रदान किया। Especially we are talking about the prevention and management of post-COVID effects, a holistic approach. This is the basic theme of today's lecture. आज लेक्चर देने का समय नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, न्यूज़पेपर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप लोगों के सामने सारी की सारी चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर, आप हर व्यक्ति इससे जागरूक है, हर व्यक्ति को यह जानकारी है कि ये जो है कोरोना इज अ ग्लोबल ट्रेजेडी, ग्लोबल क्लेमिटी ऑफ दिस सेंचुरी। आप देखते हैं कि नॉट ओनली विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब द पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय दिस ड्रेडेड वायरस। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं कि आज तक इतने मेडिकल फैटर्निटी के इंटरवेंशन के बाद आज भी हमारे पास इसकी कोई सफल चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। कारण इस वायरस के अगेंस्ट में
हम लोगों को केवल एक ही स्ट्रेटजी आज सामने दिखाई पड़ रही है भारत सरकार की और अन्य जो देशों के लोग हैं उनके सामने एक ही चीज है कि किसी प्रकार से इसको बचाव का प्रयास किया जाए। उस बचाव के लिए आज वैक्सीन भी तमाम सामने आई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे इंडिया में भी यूज हो रही है और उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक मत से ऑल मेडिकल साइंटिस्ट ऑफ द ग्लोब, even WHO has clearly mentioned that nothing can be done to cure this particular virus. Simply the immunity is only the way to protect yourself from the dreaded clutches of this dreaded virus. तो आपको अगर बचाव करना है तो केवल इम्यूनिटी पर ध्यान देना है। Whatever directions are given by the government of India, time to time, Ministry of Health, social distancing, we are talking about physical distancing, it is not social distancing. Social distancing is not appropriate word in our perspective, because मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप दूर रहें, शारीरिक दूरी बनाएं, लेकिन मानसिक दूरी और सामाजिक दूरी कभी न बनाएं। एक दूसरे से लगातार जुड़े रहें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ें या आप टेलीफोन के माध्यम से जुड़ें या दूर से ही आपकी बात अगर होती है तो बात करें और एक दूसरे से और नजदीक आने का अवसर प्रदान किया है इस कोरोना ने आपको। तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ में, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर का प्रयोग करना हो, रिपीटेडली हैंड वॉश करना हो, ये सारी चीजों का प्रयोग करना तो अभी भी वर्जित नहीं है। ये तो अभी भी करना है आपको, चाहे वैक्सीनेशन हो गया हो या ना हुआ हो, हमेशा करते रहना है। अभी साथ साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, चाहे वो पोस्ट कोविड की हम बात करें, चाहे ड्यूरिंग कोविड की बात करें या प्री कोविड की बात करें। तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ध्यान रखना है कि तमाम ऐसे विज्ञापनों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो चीजें आती हैं कि ये आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये पेंट करेंगे तो आपके पेंट में ये एंटीवायरस काम करेगा। इम्यूनिटी एक दिन की चीज नहीं होती। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट्स करना होगा राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी टू एनहेंस योर इम्यून सिस्टम राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आपको विशेष रूप से आज के इस अवसर पर मैं एक विशेष रूप से आपको शेयर करना चाहूंगा कि जहां तक सवाल इम्यूनिटी बढ़ाने का है तो हमारे जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है उसके दृष्टिकोण से मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि शरीर के अंदर 3 तरह के बल होते हैं। इसको हम कहते हैं त्रिविध बल, 3 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेंथ एज डिस्कस्ड इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स। दे आर कॉल्ड एज सहज बल, दैट इज जेनेटिकल, कालज बल, दैट इज टाइमोरल, एंड थर्ड वन इज द युक्तिकृत, दैट इज आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। सहज बल तो जन्म से बच्चों को मिलता है। कालज बल ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आप देखते हैं कि सर्दी के जो समय होता है उसको हम कहते हैं हेल्दी सीजन। आपकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी होती है, भूख आपको अच्छी लगती है, आपके शरीर का बल भी अच्छा होता है। और वहीं वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है, इस समय आपका बल सबसे कम होता है बॉडी में, इनएडिक्वेट स्ट्रेंथ, एंड दिस टाइम इज द ससेप्टेबिलिटी और टू द डिसीज इज इंक्रीज्ड। तो इस समय आपको अपने आप को और सावधानी के साथ रहना है। तो ये त्रिविध बल की जो कल्पना की गई है, सहज बल, कालज बल, और कालज बल दूसरा क्या होता है, अवस्था के अनुसार, एज रिलेटेड। बच्चों में इम्यूनिटी कुछ कम है, आगे आते आते धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों में जो बचपन में ज्यादा कॉमन होती हैं बीमारियां, और बड़े होने के बाद में ऑटोमेटिकली वो हमारी बॉडी में नहीं आती। तो ये होता है कालज। और तीसरा बल होता है युक्तिकृत। युक्तिकृत में आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। ये आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड जो बल है, इसी की आज जरूरत है। इसके लिए हमारे यहाँ 2 स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द नेम ऑफ द रसायन एंड बाजीकरण इन अष्टांग आयुर्वेद। रसायन मीन्स रिजुविनेशन थेरापी, बाजीकरण मीन्स एफरोडिसियाक्स, दे आर द सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो इन सारे डिसिप्लिन्स में वी हैव गॉट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स प्रिपरेशंस आर अवेलेबल। They are typically meant to enhance the immunity or resistance of an individual.
आपके शरीर के बल को बढ़ाने के लिए हजारों आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध हैं। ये भंडार है। आयुर्वेदिक लिटरेचर हैज गॉट ट्रेजर ऑफ मेडिकल वैल्यूज। Several drugs are available in your close proximity. You can use those drugs to enhance your immune system. तो ये सारी चीजों के बारे में जो हमारे यहाँ कहा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इनका प्रयोग हमें शुरू से करना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि पूर्वे वयस मध्ये वा मनुष्यस्य रसायनम प्रयुंजीत विषग प्राग स्निग्ध सुदस्तनुस्तदा। Try to use the immunomodulator drugs right from initial age group. बचपन से ही आपको शुरू करना चाहिए बच्चों को खिलाना, या मध्य वा इवन इन द यंगर एज ग्रुप, आपको यंग एडल्ट तक आप इसको यूज करें। और अगर आपने 50 साल के एज के बाद में शुरू किया तो उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जैसे का बरसा जो कृषि सुखाने। यू विल हैव टू यूज दिस ड्रग्स राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो इन दवाओं का प्रयोग प्रारंभ से ही हमको करना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत अच्छा 16वीं शताब्दी में एक हमारे यहाँ आयुर्वेदिक फिजिशियन हुए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। सारंगधर ने जो डिस्क्रिप्शन किया, वो डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा 100 वर्ष की मनुष्य की आयु को उन्होंने 10 डिकेड्स में बांट दिया, और प्रत्येक डिकेड में एक बायोलॉस के बारे में बताया कि इन फर्स्ट डिकेड देयर विल बी बायोलॉस ऑफ चाइल्डहुड और कॉर्पुलेंस, इन सेकेंड डिकेड देयर विल बी डिक्लाइन और बायोलॉस ऑफ ग्रोथ, इन थर्ड डिकेड कॉम्प्लेक्शन, इन फोर्थ डिकेड मेंटल पावर, इन फिफ्थ डिकेड ऐसा सोन बाल्यम वृद्धिर छविर मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम दस्तो वसेत। तो दीज आर दी 10 specific biofactors which are gradually declining in the respective decade. उसको रोकने के लिए आपको उस दशक में प्रयोग की जाने वाली औषधियों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम उस दशक में होने वाले बायोलॉस को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में 1 से 10 साल तक के बच्चों में जो कॉर्पुलेंस का लॉस होता है, उसको रोकने के लिए आपने देखा कि पुराने राजा महाराजाओं के इतिहास आप पढ़िए तो बच्चों को स्वर्ण भस्म चटाया करते थे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आज हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, काफी दिनों से प्रचलित हो गया है। पहले साउथ इंडिया में था, इवन इन नॉर्थ इंडिया इट्स वेरी पॉपुलर नाउअडेज, एंड वी हैव स्टार्टेड इट इन प्रयागराज इटसेल्फ। और इसकी मैंने शुरू किया है, हर महीने के पुष्य नक्षत्र के दिन स्वर्ण भस्म को हम लोग जो है ब्राह्मी घृत और मधु के साथ मिला करके बच्चों को चटाते हैं। और इसकी वजह से बच्चों में इम्यूनिटी इस लेवल तक ग्रो करती है। इसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर MLB भट्ट साहब, जो उसके वाइस चांसलर हुआ करते थे, उनके निर्देशन में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देशन पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। गोरखपुर में जापानीज एन्सेफेलाइटिस के वाले बच्चों को कराया गया, और यहाँ पर KGMU में उसका हम लोगों ने वो किया, साइंटिफिक स्टडी किया, तो देखा कि स्वर्ण प्राशन करने के बाद बच्चों की इम्यूनिटी वंडरफुली इंक्रीज होती है। सो दैट आपके सामने तीसरी लहर आने वाले की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। तो स्वर्ण प्राशन इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मीडिया described by काश्यप thousands and thousands years ago. इसमें जो है हमारे यहाँ कहा गया कि स्वर्ण प्राशन बच्चों को कराना चाहिए। और आज के परिवेश में जो बच्चे स्वर्ण प्राशन हम तो निःशुल्क करा रहे हैं, उसमें कोई फी नहीं है। हर महीने आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और आपको निःशुल्क कराया जाएगा। माँ शारदा हॉस्पिटल में रेगुलर कोर्स में हम लोग कराते हैं हर महीने। अभी कोरोना पैंडेमिक के समय काफी जो रेस्ट्रिक्शन लॉकडाउन हुआ उस समय बंद किया गया, पुनः हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। वो सब बच्चों को कराया जा सकता है, 2 वर्ष से लेकर के जन्म से न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को हम ये कराते हैं। तो ये स्वर्ण प्राशन हुआ। दूसरा, बच्चों को हमारे यहाँ कुमार कल्याण रस एक मेडिसिन उपलब्ध है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, सब बच्चों को दिया जा सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तीसरा, अरविंद दासव, ये अगर देंगे तो बच्चों का डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, ग्रोथ प्रॉपर रहेगी, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें देने का मकसद ये होता है कि उसकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ प्रॉपर हो। तो ये बाल्यम
वृद्धि के लिए हमारे यहाँ कहा गया है सेकंड ग्रोथ में 11 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों की जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, इसके अलावा इनके फिजिकली वो अपने आप को काफी कमजोर महसूस करते हैं, तो उसके लिए बला, अश्वगंधा और शतावरी। शतावर इज वेरी कॉमन ड्रग. इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक फॉर द लीडे फीमेल्स. केवल ये लैक्टोकोक नहीं है, आप हमारी महिलाओं में बच्चा पैदा होने के बाद में मिल्क को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो शतावरी नाउ इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन्यूल्स बाय सेवरल फार्मास्यूटिकल्स। तो आपको आजकल के परिवेश में तमाम ये जो प्रिपरेशंस आपके मार्केट में विज्ञापन के माध्यम से बेचे जा रहे हैं, उनकी जगह पर महिलाओं को शतावरी कल्प का प्रयोग कराएं और बच्चों को अश्वगंधा का कोई ना कोई प्रिपरेशन आप जरूर दें, चाहे अश्वगंधा कैप्सूल दें। प्रवेग फार्मास्यूटिकल्स ने एक कैप्सूल लॉन्च किया है, दैट इज वेरी इफेक्टिव। मैं आजकल इसका प्रयोग कर रहा हूं, काफी लोगों को कर रहा हूं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ द कैप्सूल, क्योंकि अश्वगंधा टेस्ट में कड़वा होता है, सामान्य लोग नहीं खा पाते। अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं, वो चूर्ण लें, कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में इसका अगर बच्चे हैं वो कैप्सूल नहीं खा पाए तो उनका अश्वगंधा का लेह आता है च्यवनप्राश की तरह, उसका प्रयोग करें। और विशेष रूप से अश्वगंधा और बच्चों में प्रयोग होने वाली सभी मेडिसिन को रजत प्राश करके एक मेडिसिन अवेलेबल है, च्यवनप्राश का एक रिफाइंड फॉर्म है, इसमें केसर भी है और रजत भस्म भी है, जिसकी वजह से मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये हम बच्चों को प्रयोग जरूर कराएं। तो बाल्यम वृद्धिर छविर मेधा, छवि के लिए आपको सामान्य रूप से आंवले का प्रयोग रेगुलर कोर्स में करें। इस दशक में आंवला है, भृंगराज है, इसका प्रयोग करें। और चौथा दशक सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, फैकल्टी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मली क्या होता है, इन द फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ देयर विल बी ग्रेजुअल डिक्लाइनिंग द मेंटल एबिलिटी ऑफ द पेशेंट। क्या होता है उसमें, धी, धृति एंड स्मृति, गैस्पिंग पावर, रिमोट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, इसका कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में 4 मेडिसिन हमारी ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम रेगुलर कोर्स में करें तो चाहे कोविड का पेंडेमिक हो या कोई भी हो, आप सबसे अपने आप को बचा सकते हैं। वो 4 चीजें क्या हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलेठी और गुरुच। गुरुच का आपने देखा, जिसे गिलोय कह रहे हैं, ये गिलोय जो है इस समय जनप्रिय हो गई है। बुद्धा इंटरनेशनल टीवी शिकागो से मेरे व्याख्यान, करीब 37 व्याख्यान मेरे प्रसारित हुए, और जॉर्जिया, वर्जीनिया, फिलाडेल्फिया, टेक्सास, कैलिफोर्निया, सारी जगह से इतनी जबरदस्त क्वेरीज मेरे सामने आती हैं कि वो लोग पूछते हैं कि हल्दी हम कितना ले सकते हैं, तुलसी के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, गुलूची हम गिलोय प्रयोग करते हैं, गिलोय को किस फॉर्म में प्रयोग करें, इसका टेस्ट ठीक नहीं है, बच्चों को कैसे दिया जाए। जस्ट इमेजिन, दे आर वेरी मच कंसर्न टू यूज द आयुर्वेदिक इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी बात हम लोगों के सामने कही, हमारे साथ संवाद हुआ हमारे चिकित्सकों के साथ, तो हम लोगों से सीधा शेयर करते समय उन्होंने कहा, आपदा में अवसर की तलाश, यू विल हैव टू सर्च द अपॉर्चुनिटी इन द चैलेंज। और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने यही किया। और हम लोगों ने सबसे पहले एक आयुष क्वाथ लॉन्च किया, और आयुष क्वाथ के अंदर 4 भाग तुलसी, 2 भाग सौंठ, 2 भाग दालचीनी और 4 भाग एक भाग काली मिर्च, ये 4 औषधियों का मिश्रण तैयार किया। और इसको जो है 3 ग्राम से 4 ग्राम का एक पैकिंग बनाया, और उसको काढ़े के रूप में आप उबालिए, 4 कप पानी में डाल के उबालिए, 1 कप बचता है, उसमें गुड़ या शहद मिला के आप उसका सेवन करिए। जो डायबिटिक्स हैं वो बिना गुड़ के और बिना चीनी के भी सेवन इसका कर सकते हैं। तो ये आयुष क्वाथ इज नॉट सिंपली मेंट फॉर दी कोविड पेंडेमिक, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने आप में उत्कृष्ट औषधि है। इसका तो हम लोग लगातार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अति नहीं करना है। एक बार रिकमेंड किया गया है, आजकल आप केवल एक बार सवेरे पिए तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो ये चीजें जो हमारे यहाँ बताई गई, तो ये आयुर्वेदिक औषधियां अपने आप में बहुत ही टाइम टेस्टेड हैं और एविडेंस बेस्ड हैं। आज जिसकी हम बात करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहिए, इसके ऊपर शोध हुआ, शोध के बाद में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको खुद शेयर किया कि दीज मेडिसिन कैन बी यूज्ड। तो आपने इन मेडिसिन को आपको यूज करना है। एक बात और शेयर करना चाहूंगा, एक बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है
कि डोंट फियरफुल, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोविड-19 है। आगे आने वाले समय में तमाम इस तरह के वायरसेस और आएंगे। मैं सिंपली आपके सामने रख रहा हूं, केवल 18वीं सदी से आप देख लीजिए, स्पेनिश फ्लू, जापानीज इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, HIV, एबोला वायरस, आए दिन कोई न कोई नया वायरस। आज आपका कोविड-19 है तो कल दूसरा एक वायरस आपके सामने आएगा। तो करना क्या है? करना यह है, आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी अगर आपकी बरकरार रहेगी तो इन स्पाइट ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजिंग योरसेल्फ विद द एनी वायरस और पैथोजन, देयर विल बी नो डिसीज। मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ये चीज हमारी जो कही गई कि आपके जो शरीर में जो बल होता है, त्रिविध बल की जो बात मैंने आपके सामने कही, तो त्रिविध बल में दो चीजें आपने देखी होंगी, खुद आपने महसूस किया होगा कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जो है आज की है। तमाम बीमारियां इस तरह की आती रही, तमाम एपिडेमिक्स आते रहे, इसके डिस्क्रिप्शन हमारे इतिहास में भी है, हमारे लिटरेचर में भी है। तो होता क्या रहा कि व्हेन एनी पैथोजन एंटर्स इन द बॉडी, इट विल नॉट सर्वाइव इफ योर इम्यून सिस्टम इज अप टू मार्क। आपका बल, अगर स्ट्रेंथ आपकी अपडेट है, जिसे हम कहेंगे प्रबर बल, उत्तम बल, in that particular circumstances the COVID-19 or any pathogen may enter in the body but it will not survive for a long time. So there is no question of disease. Number second, if your immune status or your resistance power is of medium nature, then this COVID-19 or any other pathogen enters in the body, it will survive there, it will remain there, but it will not multiply. Till it will not multiply, not reaches up to a desirable number, there is no question of development of any disease. आपने खुद देखा कि एक रोगी ऐसा था कि एक परिवार में, मैंने तमाम पेशेंट्स का मैं ट्रीटमेंट किया, 3000 पेशेंट्स की मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, और मेरे डेटा में ये मिला कि एक परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोगों में से 3 लोगों को कोविड-19 हुआ और 2 लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव आया और एक को पॉजिटिव आया ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? It totally depends on the status of the immunity. तो मीडियम स्टेटस के जो लोग होंगे उस पर कोविड-19 में एंटर इन द बॉडी, बट इट विल नॉट मल्टीप्लाई. टिल इट विल नॉट मल्टीप्लाई, the concentration of virus will not reach up to a desirable number, there will be no question of the development of the disease. This is very important issue. तो आपको ये जानना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी का स्टेटस आपका सही है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं कि कोविड-19 इज देयर, बट जब when you tested them, so they will be positive, but they will be asymptomatic. They cannot, they can spread the disease as a carrier, but they themselves is not having any type of the problem. ये होता है मीडियम स्टेटस ऑफ द इम्यूनिटी, इसे कहते हैं मध्यम बल। और तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं, इसे कहते हैं हम हीन बल, इनएडिक्वेट इम्यूनिटी और कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी। इन दोज इंडिविजुअल्स, आपका कोरोना वायरस अंदर गया या कोई पैथोजन और अंदर गया, बहुत तेजी के साथ में मल्टीप्लाई किया, बहुत जल्दी फुल ब्लोन सिम्टम डेवलप किए और पेशेंट को इतना ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन की नीड आ गई, ऑक्सीजन देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। तो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द इम्यूनिटी। तो सारा फोकस कहां पर है? इम्यूनिटी पर। और आप जान लीजिए कि वायरस and other pathogens, they are not important for the development of the even infectious diseases. We believe in the 4 factorial theories. वो क्या है हमारी, जिसे हम कहते हैं ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यात गर्भ स्याद्विद पूर्वक ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानाम सामग्र्याद अंकुरयथा। किसी बीज को अगर आपने डायरेक्टली जमीन पर डाल दिया तो वो अंकुरित होना जरूरी नहीं है। जब तक उस बीज को आप ऐसी जमीन पर डालें कि सीजन भी प्रॉपर हो, ऋतु सही हो, क्षेत्र माने फील्ड अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो, उसको पानी भी मिलता रहे और तब वो बीज की क्वालिटी भी अच्छी हो, तभी बीज अंकुरित होगा। सिमिलरली, if any pathogen enters in the body, if the body is not appropriate according to its own nature, then it will not be there, it will not multiply there, ये पनप ही नहीं सकता। तो आपको चाहिए क्या कि अब चाहिए ये कि इस बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली तैयार नहीं करना है। इफ यू विल
take the immunomodulator drugs time to time, then automatically the COVID-19 type of the any virus enters in the body. It may be there. It will not multiply till your body is not prepared according to the need of that particular pathogen. तो हमको कुल मिला के सारा का सारा फोकस कहां पे आ रहा है? इम्यूनिटी के ऊपर आ रहा है. आप जानते हैं इस इम्यूनिटी की जब हम बात आपके सामने करते हैं तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है. हमारे यहाँ 3 उपस्तंभ कहे गए हैं. मैं ये कोविड-19 पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूं कि आज भी आपको यही काम करना है जो पहले करना था. 3 हमारे यहाँ उपस्तंभ कहे गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य. आहार क्या है? खाना आप कैसा लें, नींद आपकी कैसी हो और आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो. ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. तो यहां पर आहार के संबंध में मैं एक चीज आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, आज भारतवर्ष की जो हमारी प्रणाली है कि सारा का सारा विश्व आज शाकाहार की तरफ आकृष्ट हो रहा है. और शाकाहार में भी हम सात्विक आहार की बात करना प्रारंभ कर दिए हैं. शाकाहार की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि शाकाहार में भी सात्विक आहार, और सात्विक आहार के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहां माना गया है कि आहार संभवो वस्तु रोगश्च आहार संभवा. दिस बॉडी इज प्रिपेयर्ड बाय आहार एंड इवन द डिसीजेस आर डेवलप्ड टू दी फॉल्टी डाइटरिज्म. तो आपको आहार का सिलेक्शन सही करना चाहिए. आज क्या हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है. हमारा यंग जनरेशन, बच्चों से लेकर के हमारे बूढ़ों तक, लोगों का आकर्षण वेस्टर्न कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और आज हम जंक फूड को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज को भूल रहे हैं. आप पिज्जा, नूडल्स, बर्गर, इसकी तरफ हमारी सब पूरी आकर्षण हमारा चला जा रहा है. ये डेड फूड. तो ये सारी चीजें आपको नुकसानदायक हैं. तो बच्चों को शुरू से ही प्रारंभ से आदत डालें कि जंक फूड का प्रयोग कम से कम करें. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डायबिटिक्स की हम मैं बात कर रहा हूं, कोमॉर्बिड कंडीशंस की बात कर रहा हूं. तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि पथ्ये सत्य पदार्थस्य किमौषध निसेवनई और पथ्ये असत्य पदार्थस्य किमौषध निसेवनई. Person who follows the proper dietary instructions, he needed to take any medicine. A person who does not follow the instructions given by the dietetics, then there will be no benefit of the medicine. तो आपको अगर डायबिटीज है तो आलू, चावल, चीनी नहीं खाना, और इधर आप डायबिटीज के लिए इंसुलिन ले रहे हैं या और कोई दवाई ले रहे हैं, और उधर आप अच्छी तरह से चावल, चीनी भी प्रयोग कर रहे हैं, शुगर, तमाम तरह की मिठाइयों का सेवन कर रहे हैं. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू क्योर ए पार्टिकुलर एलिमेंट. तो आपको आहार के संबंध में विशेष रूप से जानना चाहिए. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे वेदों में, आप सोचिए कि हमारे वेद की ऋचाएं कहती हैं कि हित भुक, मित भुक, अशाक भुक. अब आप इस ऋतु के बाद में जब जा रहे हैं, अब वर्षा ऋतु भी आने वाली है, तो आपको विशेष रूप से 3 इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. अगर कोविड की तीसरी लहर से आपको भय है या कोई अन्य बीमारी से आने से भय है, हित भुक, मित भुक, अशाक भुक और ऋत भुक. हित भुक का मतलब क्या है? द थिंग्स विच आर सुटेबल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कंज्यूम दोज आर्टिकल्स ओनली. नेनुआ, लौकी, करेला, परवल, तरोई सामान्य रूप से डाइजेस्टिव होते हैं, लाभकारी है, इनका आप प्रयोग करें. कोहड़ा, कटहल, बैंगन, अरबी, उड़द की दाल, रेड मीट, ये सारी चीजें उतनी नुकसानदायक हैं, लाभ नहीं उतनी पहुंचाती. इनका प्रयोग कम से कम करें, इनको बचाएं. तो ये आपको हित भुक, नई चीजों का एक्सपेरिमेंट न करें. मित भुक, मित भुक का तात्पर्य क्या है? ट्राई टू कंज्यूम लिटिल बिट लेस क्वांटिटी ऑफ द फूड एज डिजायर्ड. हमें भोजन कम करना चाहिए. कम करने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो पेट है, जो एब्डोमेन है, स्टमक है, इसके हम 4 हिस्से कर दें. हिस्से करने का मतलब बांटना नहीं है. सोच करके आप मान लीजिए कि इसके 4 हिस्से कर दें, और 4 हिस्से में हम क्या करेंगे? 2 भागौ पूरयेद अन्नम, 2 हिस्से हम खाने से भरें. तोये एकम प्रपूरयेत, एक हिस्से को हम जल से भरें. और वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत, एयर का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो ढंग से चलते रहें, इसके लिए आपको एक हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए. मिक्सर में भी जब आप पिसाई करते हैं कोई चीज की, तो उसको भी थोड़ा आप खाली ऊपर छोड़ते हैं, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा. अगर आपने ठूस ठूस के स्टमक को भर लिया तो इट विल नॉट बी यूजफुल. वेस्ट भी होगा और आपको तबीयत भी खराब होगी, आपको तकलीफ हो जाएगी.
तो हितभुक, मितभुक, अशाक भुक। वर्षा ऋतु में पत्ते वाली साग सब्जियों का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। धनिया का प्रयोग मत करिए, पालक मत खाइए, पत्ते वाली सब्जी बिल्कुल यूज ना करें। पुदीना वगैरह भी अपने घर में अगर लगा के रखा हो तो अलग बात है, अदरवाइज बाहर से मंगा के पुदीना का सेवन भी ना करें। तो ये जो है, और ऋतुभुक, भगवान का जब पूजन भी करते हैं आप, तो आपको पंडित जी कहते हैं कि आप ऋतुफल चढ़ाइए। भगवान भी ऋतुफल की आकांक्षा करते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ ऋतु विपर्य, ऋतु के अनुकूल जो फूड न हो उसका सेवन न करें। गर्मियों में तरबूज आता है, अगर आप ठंडक में, मैं अमेरिका गया तो मैंने अमेरिका में देखा कि नवंबर के महीने में तरबूज मिल रहा है। तो आपको ऋतु के अकॉर्डिंगली जो मौसमी फल और सब्जियां हैं उसका प्रयोग करें। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपके, ये हमारा आयुर्वेद हमारा स्पेशली इसको हाईलाइट करता है कि जहां आपने जन्म लिया है, जहां आप पैदा हुए हैं, उसके 100 किलोमीटर आसपास में उपलब्ध जो वनौषधियां हैं, 100 किलोमीटर आसपास उपलब्ध जो सब्जियां हैं, जो अन्न होता है, उसका ही आपको सेवन करना है। वही आपके लिए लाभकारी है। नॉर्थ इंडिया में रह के साउथ इंडियन डिशेज का आनंद एक आध दिन तो ले सकते हैं आप, रोज रोज खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो आपको जहां पर आप हैं वहीं के वातावरण में उत्पन्न हुई औषधियां आपके लिए लाभकारी है, वहीं के उत्पन्न अन्न और आहार आपके लिए लाभकारी है। इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसका ध्यान रखें। दूसरा एक होता है आपका अन्न का, इसे कहते हैं विरुद्ध आहार। एलर्जिक डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, पार्टिकुलरली ये कोविड-19 पैंडेमिक में तो मैं देख रहा हूं कि थोड़ी भी आपको एलर्जी हुई, सर्दी जुकाम हुआ, आपके फेफड़े में परेशानी पैदा हुई, तो आप समझिए कि आप एक ससेप्टेबिलिटी आप बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे आपने आजकल एक परंपरा बन गई है कि छाछ में तो आप मिला सकते हैं नमक जीरा, दही में आप नमक जीरा नहीं मिला सकते। दही का जो रायता बना के सेवन करते हैं लोग, उसमें नमक जीरा मिला के खाते हैं, वो न खाए के। दही जो है शुगर के साथ ही या गुड़ के साथ ही खाना चाहिए। ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है। लेकिन लंबे समय तक अगर विरुद्ध आहार का सेवन आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे बॉडी को सूटेबल हो जाएगा, लेकिन शुरू में वो आपको बीमारी पैदा करने के लिए उत्तरदायी भी हो सकता है। तो ये हमको जानना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। नींद के लिए अगर आपका फिजिकल एक्सर्शन कम हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है यदा तो मनस क्लांते कर्मात्मानम कलमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वल्पमेवाः। जब तक आप थकेंगे नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज आप करिए। बच्चे जो है वीडियो गेम ना खेलें। बच्चों को आज भी छत पे, चाहे लॉकडाउन का पीरियड क्यों ना रहे, छत पे खेलने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, खो खो है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गेम आपके हैं, बैडमिंटन वगैरह है, टेबल टेनिस घर में मंगाइए, इसका प्रयोग कराइए। बच्चे खेलें और थोड़ा जब खेलेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो उससे उनको लाभ होगा। तो जब तक थकेंगे नहीं तब तक आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी। और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइज, आप पुस्तकें पढ़ें, आध्यात्म की बात करें, चर्चा करें, डिस्कशन करें लोगों से, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, तो आपको नींद आएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है संयमित जीवन शैली। आज आप देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि सूर्योदय तो उनके भाग्य में नहीं, बच्चों के में, रात के 2 बजे तक पढ़ते रहेंगे या कुछ करेंगे, उसके बाद में सवेरे 10 बजे के पहले उठने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लॉकडाउन के पीरियड में मैं देख रहा हूं। और ब्राह्म मुहूर्त में उठने का जो विधान है वो अपने आप में आपको बहुत एनर्जी देता है। कोशिश करिए रात को अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये आपको करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इससे आपको प्रातःकाल आपको एनर्जी मिलेगी। उषा काल में आप उठेंगे, उषा पान करेंगे। उषा पान मीन्स तांबे के बर्तन में रखा हुआ आप जल पीजिए। दिस लाइफ स्टाइल इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनहेंसिंग ऑफ इम्यूनिटी। दूसरा, सूर्य का दर्शन, प्रातः काल के सूर्य का दर्शन, जो रेज आपकी आती हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। इसको हम कहा है सद्य प्राण देने वाली, इमीडिएटली आपकी एनर्जी को एनहेंस करने वाली हैं। उसी प्रकार से आपको प्राणायाम करने के बाद चक्रमण, आपको कम से कम 3000 to 4000 स्टेप्स मिनिमम आपको चलना है। टहलना आपके लिए बहुत जरूरी है। और टहलने के बाद 20 से 30 मिनट तक आपको योगाभ्यास करें। उस योगाभ्यास में, इस करबेस में, पार्टिकुलरली कोरोना कालखंड में, आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज के लिए जो बात की गई है, जो योगा कहा गया है, उसमें 3 का आप अभ्यास करें। उसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति। जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के दवा ले रहे हो, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो, वो आपको कपालभाति न करें और दूसरे भ्रामरी प्राणायाम इत्यादि प्राणायाम वगैरह न करें। वो केवल एक ही प्राणायाम करना, उन्हें करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये सदाबहार प्राणायाम है,
बहुत सिंपल है। इसमें अनुलोम विलोम की तरह इनहेलेशन 1:4:2, इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन का जो रेशियो है 1:4:2। 10 तक गिनते हुए श्वास ले, 40 तक गिनते हुए रोकें और 20 तक गिनते हुए दूसरे नासाशिक से छोड़ें। 10, 40, 20 मैं प्रैक्टिस करता हूं, 50, 200 और 100 ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। इससे आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी स्टेमिना बढ़ेगी और ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज कम होगी। तो आपको ये एक्सरसाइजेज जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ में योगा की फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम एंड साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड जो योगासन है उनको आप अवश्य पालन करें। इसके बारे में 21 जून को हम पुनः जुड़ रहे हैं। हम अपना लिंक भेजेंगे, आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। वी विल जस्ट डिस्कस रिगार्डिंग द कॉमन यूजफुल योगासन्स जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सामान्य तरीके से आजकल के कालखंड में। ये बहुत जरूरी है, तो ये हम करें। तो इससे क्या होगा कि इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब हम आ रहे हैं आपके सामने कि सामान्य औषधियां, अन्य औषधियां जो मैंने आपको बताई कि मैंने गिलोय आपको बताया, अश्वगंधा का प्रयोग बताया, साथ साथ में आपको अन्य औषधियों में मैंने आपको आंवला जो है हमारे यहाँ रसायन सबसे उत्तम होता है, पंचरसा है, ये बहुत ही लाभकारी होता है। ये एजिंग प्रोसेस को रोकने वाला रसायन है और इसका हम प्रयोग करें। मुलेठी का प्रयोग करें, ये प्रूव्ड है इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली। इन औषधियों का हम प्रयोग करें तो बहुत लाभकारी होगा। अब हम आते हैं कि आज कोरोना में आपने देखा कि लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, अब तो पेट के सिम्टम्स भी आपके सामने आए। पेट दर्द हो रहा है, किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी की नाक की स्मेल चली जा रही है, किसी का टंग का स्वाद चला जा रहा है। ये सारी समस्याएं कोरोना में आती रही, नए नए सिम्टम्स और आपके सामने आए, गिडीनेस आया, तेज सिर दर्द हुआ, ये सारी समस्याएं। तो ये सारी समस्याओं से निजात पाने के बाद भी आज जो फोकस मैं करना चाह रहा हूं आपके सामने कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स, आज आप देख रहे हैं कि सामान्य रूप से 3 से 4 सप्ताह के अंदर इन सारी समस्याओं का निदान लोगों का हो जाना चाहिए, सामान्य रूप से ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोगों में 3 से 4 सप्ताह के बाद भी ये सिम्टम्स बने रहते हैं इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 नेगेटिव आएगा आरटीपीसीआर, लेकिन सिम्टम आपके बने हुए हैं। ऐसे सिम्टम्स में 3 तरह के पेशेंट्स होते हैं। पहले तो वो पेशेंट्स जिनमें के कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हैं, जैसे कुछ डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनको लंग का सीओपीडी और अस्थमा है। ऐसे पेशेंट्स में ये लंबे समय तक बीमारी चलती ही है। दूसरे पेशेंट कौन से होते हैं? जो आपके ओल्डर एज ग्रुप के हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उसमें भी रिकवरी रेट कंपैरेटिवली स्लो होती है। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जिसे कहते हैं हम लॉन्ग हॉलर्स। स्वाभाविक रूप से उनकी इम्यूनिटी बचपन से ही कम होती है, तो वो कहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी होती है तो लंबा समय लगता है। तो दोज पेशेंट्स आर कॉल्ड एज लॉन्ग हॉलर्स, लंबे समय में ठीक होने वाले, बीमारी को लंबे समय तक ढोने वाले। तो वो कंडीशन उन लोगों में मिलती है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, यंग एडल्ट्स, नॉट ओनली द सीनियर सिटीजन्स, जिन बच्चों में बीमारी बहुत हल्की हुई, ये सिम्टोमेटिक थी, इन स्पाइट ऑफ दैट कोविड-19 के सिम्टम्स उनको मिल रहे हैं। तो ये कोविड के ठीक होने के बाद जो सिम्टम मिलते हैं उस कंडीशन को पोस्ट कोविड सिंड्रोम, पोस्ट कोविड कंडीशंस, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स, ये सारी चीजों के नाम से हम जानते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द पोस्ट कोविड इफेक्ट्स, a holistic approach. What type of the holistic approach is recommended in the patients for the prevention and management of post-COVID conditions? तो आप देखिए, आपके सामने बहुत ही स्पष्ट चीज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि आप देखिए कि पोस्ट कोविड कंडीशन में मैंने जो काउंसलिंग किया है 3000 पेशेंट्स की, उसमें से मोर देन 75% पेशेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट द क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। लोगों की शिकायत है कि बहुत लंबे समय तक वो कहते हैं कि हमको थकान बहुत हो रही है, बहुत थकान हो जाती है, थोड़ा 10 कदम भी चलते हैं तो सांस फूलने लगता है बैठ जाएं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, जिसे कहते हैं हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। इस क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट्स को मैंने पर्सनली इंक्वायर किया। आई हैव इंक्वायर्ड ऑल द पेशेंट्स जो मेरी काउंसलिंग में मेरे साथ थे। उनका
95% पेशेंट्स ने ये कहा कि साहब भूख उतनी अच्छी नहीं लगती, खाना टाइम से हम खा लेते हैं। कुछ तो ये कहा कि भूख लगती ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, खाना आ जाता तो हम खा लेते हैं टाइम से, अदरवाइज भूख नहीं लगती। उनका पेट साफ नहीं होता, खाना ढंग से पच ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर उस फटीग को रोकने के लिए, थकान को कम करने के लिए आप ताकत को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक या एलोपैथिक औषधियां देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे पहले हमको उनकी अग्नि ठीक करना है। डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस थिंग। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना अस्तित्व बता रहे थे कि वृक्षोम अश्वत्थोम, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, ऋतु नाम कुसुमाकर है, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूं। तो भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे प्रभु, शरीर में आप क्या हैं? तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं मनुष्य के शरीर में जठराग्नि हूं। I am living in the human body in the form of the digestive fire, which is supposed to be responsible for the digestion of all 4 types of the food. सारे खानों को, भोजन को पचाने का काम मैं करता हूं। It means the high emphasis has been paid on the concept of the जठराग्नि of an individual. तो अग्नि जब आपकी सही रहेगी तो आपका मन भी काम में लगेगा, आपको भूख लगेगी, पेट साफ होगा, मोशन सही होगा और शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी। जो खाएंगे वो आपको लगेगा। तो सबसे पहला फोकस आपको क्या करना है कि आपको अग्नि ठीक करने के लिए, इसके लिए किसी चिकित्सक को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा हमारी औषधि है चित्रकारी बटी। और हमेशा याद रखिए, लिवर का फंक्शन जहां आपका टेम्पर्ड होगा तो आपको भूख आपकी खराब होगी। एक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है प्रवेक लिव। प्रवेक लिव की 2 गोली या चित्रकारी बटी की 2 गोली सुबह शाम भोजन के आधा घंटा पहले आप लीजिए। यू विल सी विद इन मीन टाइम 2-3 डेज आपको डाइजेस्टिव फायर आपकी प्रोवोक करेगी, आपको भूख लगेगी। और अगर आपको गैस बन रही है, भूख भी नहीं लग रही है, गैस भी अधिक बनती है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण, इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, एवरीबॉडी कैन परचेज इट। तो उस हिंगवाष्टक चूर्ण को गाय के देसी घी में सान करके 1 चम्मच चूर्ण को 1 चम्मच घी में रोटी के पहले कोर से चबा चबा के खाइए। आपकी डाइजेस्टिव फायर भी इंप्रूव करेगी और आपको गैस नहीं बनेगी, मोशन भी सही होगा। इसके बाद मोशन सही करने के लिए अगर कोई कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो रहा है तो कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। 2 से लेकर के 6 अंजीर मुनक्का और 2 अंजीर आपको 1 कप दूध में उबाल करके शाम को लीजिए। ग्रेजुअली आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपको अच्छी भूख लगने लगी, देन आपको औषधि का प्रयोग करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अश्वगंधा का कोई प्रिपरेशन यूज करना है, चाहे अश्वगंधा कैप्सूल लें। प्रवेक का कैप्सूल अश्वगंधा का बहुत अच्छा मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा, आपको च्यवनप्राश के फॉर्म में रजत प्राश का प्रयोग कर सकते हैं, च्यवनप्राश का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए कि दे वर नॉट रेस्पॉन्डिंग विद दीज मेडिकेशंस, एक्सट्रीमली दे आर हैविंग द वीकनेस, दे आर नॉट इन द पोजीशन टू, अपने बटन तक बंद नहीं कर पा रहा पेशेंट, बटन बंद करने पे भी सांस फूल जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स में वी हैव गॉट अ वंडरफुल प्रिपरेशन इन द मार्केट that is available in the by the name of the Nervoculp. This Nervoculp is supposed to be wonderful medication of Ayurveda. ये आपको 5 दिन केवल आप सेवन करिए, 5 दिन में आपको डिजायरेबल इफेक्ट मिलेगा। 1 कैप्सूल की दवा चम्मच में निकालिए। अगर डायबिटिक है तो दूध के साथ चाट लीजिए, और अगर डायबिटिक नहीं है तो शहद मिला के चाटिएगा, और आप देखिएगा विद इन 4-5 डेज आपको मैजिक इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी थकान में। तो पहला सिम्टम आपका हुआ जो एक्सट्रीम जो वीकनेस हो रही है, वो सिम्टम हुआ, इसे कहते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट साइन होता है वो आपको मिलता है लोगों में सांस फूलना, खांसी आना। अगेन इट्स अ सेकंड कॉमन सिम्टम, दिल की धड़कन बढ़ जाना। तो आप जानते हैं कि आपको अगर सांस फूलने की शिकायत हो रही है तो आपको सांस फूलने को सही करने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि एलर्जिक इंडिविजुअल्स आर मोर ससेप्टेबल टू दिस पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तो आप जो चाय सेवन कर रहे हैं उसकी जगह मार्केट में हम लोगों ने एक एंटी एलर्जिक टी लॉन्च किया है, वो आपकी मार्केट में अवेलेबल है। वो आपको क्लिनिकली ट्रायल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, और आप देखेंगे वो ब्रोंको टी के नाम से मार्केट में है। उसको चाय की पत्ती की जगह पे आप उसको यूज करिए, और चाय पीने के ज्यादा शौक है तो चाय की पत्ती के साथ इसको यूज करिए और आप पीजिएगा। यू विल सी योर लंग्स विल बी क्वाइट क्लियर, और आपको
ब्रोंकोडायलेशन भी होगा, सांस भी नहीं फूलेगी, और अगर इरिटेटिंग कफ आ रहा है तो कफ कल्व करके मार्केट में औषधि है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सांस उसके बाद भी आपकी कंट्रोल नहीं हो रही तो आस्था कल्व, ये मेडिसिन अवेलेबल है। ये मेडिसिन आपको बड़ी क्लिनिकली ट्राइड मेडिसिन है, इसका आप प्रयोग करें तो आप देखेंगे इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये आपका हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्ट के सिम्टम्स में आपको एक चीज और शेयर कर दूं कि कोरोना का जो मेन टारगेट है वो आपका होता है लंग्स। एंटर कहां से करते हैं? आइदर फ्रॉम नोज और फ्रॉम माउथ। तो पहले तो हमको एंट्री पॉइंट पर प्रयास करना है कि इसको हम रोकने का प्रयास करें। तो रोकने का प्रयास कैसे करेंगे? नाक में अणु तेल हमारा मार्केट में आता है, किसी भी कंपनी का आप लीजिए अणु तेल मिलेगा, क्लासिकल मेडिसिन है। अणु तेल नहीं डाल सकते तो तिल्ली का तेल डालें 2 बूंद, गाय का देसी घी डाल सकते हैं। नाक में 2 बूंद सवेरे, 2 बूंद शाम को, दोनों तरफ नोस्ट्रिल्स में डालें। ये नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की बैरियर की कैपेबिलिटी बढ़ाता है और म्यूकोजल बैरियर आपके कोविड-19 जैसे किसी भी वायरस को एंटर करने के लिए रोकता है। दूसरा, माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन को बैरियर को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे यहाँ होता है कवल और गंडूस। इसमें क्या होता है कि मेडिकेटेड ऑयल्स या गाय का घी, इसको मुंह में आप 5 से 10 ग्राम की क्वांटिटी में 2-4 चम्मच आप भर लीजिए और थोड़ी देर मुंह में चलाइए, चलाने के बाद उसको निकाल दीजिए। इससे आपकी माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन एनरिच होती है और ये म्यूकोजल बैरियर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका एंटर रोकेगा। जैसे आपने देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, तमाम फंगस आपके सामने आ रहे हैं। एंट्री पॉइंट यही है। शुरू से ही अगर आप ये करेंगे तो आपको एज ए कॉम्प्लिकेशन देयर विल बी नो ब्लैक फंगस, नो व्हाइट फंगस, नो येलो फंगस। प्रारंभ से ही आप इसका प्रयोग करें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको तीसरा जो हार्ट मैंने बताया कि सेकंड टारगेट ऑर्गन इसका क्या होता है? हार्ट। आप देखेंगे कि लंग्स का टारगेट, लंग्स में करता क्या है? लंग्स में जाने के बाद आपके जो एल्वियोलाई होते हैं, वायुकोश, उनको डैमेज करता है और डैमेज करने के बाद वो फाइब्रस हो जाते हैं। जब उनमें हार्डनिंग हो जाती है तो लंग की वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, फोर्सफुली एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है, सांस की शिकायत हो सकती है। ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब हार्ट में जाता है तो आप देखें कि 3-4 महीने के बाद में पेशेंट का जब स्कैनिंग कराया गया तो उसमें देखने को मिला कि मायोकार्डियल मसल्स में डैमेज हुआ है, हार्ट की मसल्स में डैमेज हो रहा है, जो लंबे समय में हार्ट अटैक की शिकायत पेशेंट को कर सकते हैं। यही नहीं, ये आगे चल करके आपको तमाम तरह की और बीमारियों को पैदा कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक की समस्याएं और आ सकती हैं। इसलिए आपको इसको बचाने के लिए, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, और एनी हार्ट प्रॉब्लम, try to use Arjun in any form. Arjun is supposed to be one of the best plant. That is supposed to be best medication for the patients of the cardiac disorders, heart disorders. इसके लिए अर्जुन की छाल का सुखा करके पाउडर बनाएं, उसका 1 चम्मच 1 कप गाय के दूध को मिला के और 1 कप पानी मिला करके उबालें, 1 कप बचेगा, उसको आप प्रातःकाल सेवन करें। इसे कहते हैं अर्जुन क्षीर पाक। अर्थात ये प्रयोग नहीं कर सकते तो अर्जुन का कैप्सूल, इट इज अवेलेबल, प्रीमेक फार्मास्यूटिकल्स हैज प्रिपेयर्ड अर्जुन कैप्सूल। तो इस अर्जुन के कैप्सूल को आप 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली सुबह शाम लें। यदि आपको ब्लड प्रेशर है, यदि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और कोविड के सिम्टम से आप बचना चाहते हैं कि लंबे समय में आप कोविड हमको नुकसान न पहुंचाए, तो इसका सेवन आप जरूर करें। यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। आप देखते हैं कि धड़कन बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया होता है, साथ साथ में बम्पिंग साउंड, लगता है कि बहुत तेजी के साथ दिल धड़क रहा है। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और तीसरा ऑर्गन जो होता है, लंग्स और हार्ट के बाद तीसरा ऑर्गन होता है ब्रेन। ब्रेन भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ब्रेन में आप देखेंगे कि सीजर्स, बच्चों को, लोगों को झटके आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मिर्गी के दौरे में पड़ता है। उसी प्रकार से लोगों को सीजर्स के साथ साथ में स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। साथ साथ में इन लोगों को एल्जाइमर्स और पार्किंसन की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि सीवियर हेडेक, तेज सिर दर्द होना, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं, इसके अलावा डिप्रेशन एंड एंजाइटी,
is supposed to be most common symptom of COVID pandemic. You just imagine, most of the patients are complaining anxiety and stress. जो पेशेंट हॉस्पिटल से लौट के आया है उसको क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम। जो हॉस्पिटल में था, जिसको ऑक्सीजन के साथ साथ में वेंटिलेटर पर रखा गया, तो मैकेनिकल ट्रॉमा जो हुआ, उस ट्रॉमा की याद करके उनके दिमाग में है कि अगर दोबारा फिर हमको हुआ तो फिर हमें वही जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह का स्ट्रेस उनके दिमाग में भरा हुआ है। एम आई ऑडिबल अभिषेक जी? यस सर। हाँ बिल्कुल। कितना टाइम मेरे पास कितना और है पांडे जी? टाइम तो आप जितना ले लें सर। नहीं, आपका कोई रेस्ट्रिक्शन हो तो हमें बता दीजिए। अभी थोड़ा हम 15-20 मिनट देंगे और। ज्ञान की बात में टाइम की कोई कमी नहीं है सर, ज्ञान की। ओके, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, हो रही है। ओके बी, आई एम कंटिन्यूइंग। ओके, तो मैं आपसे अभी बता रहा था कि आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने के लिए आप देख रहे हैं कि लोगों का व्यवसाय चला गया, जो प्राइवेट बिजनेस में लोग थे वो घर पर बैठे हुए हैं। सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। आदमी के सामने रोजी रोटी की समस्या, इस सारी चीजों के चलते हर व्यक्ति को मानसिक तनाव है। उस मानसिक तनाव को दूर करना, दूसरा कोविड के कारण जो मानसिक तनाव हो रहा है ड्यू टू द इफेक्शन ऑफ द कोविड, वो एक अपनी अलग समस्या है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन है जिसको हम कहते हैं कोंच। कोंच का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैवाज कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी नाम उसका कोंच है, कोंच बीज, जिसकी फली को लगाने से खुजली होती है शरीर में। वो दैट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मूड एलिवेटर ड्रग। वी हैव प्रिपेयर्ड दिस drug in the form of the Pravek Sathi. It has got the wonderful power of the spermatogenesis and is very useful in the patient of the impotency. But not only for the impotency, it is supposed to be one of the best mood elevator. That's why the Pravek Sathi in a single sachet can be used with milk in the morning time. That is very much helpful for the patients of the depression. रोज आप एक सैसे उसका सुबह शाम दूध से लीजिए और आप देखेंगे विद इन 7 days आपकी डिप्रेशन को किसी एंटी डिप्रेशन ड्रग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जनरल स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपको लाभ मिलेगा। एक समस्या और सामने आ रही है जो मैं आपको बता रहा था कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मेरे बहुत से पेशेंट्स ने ये कंप्लेन किया कि ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन आई एम इन द हाउस, और वह डाइट पैटर्न और स्ट्रेस के चलते हमारा जो सेक्सुअल लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो प्रवेक साथी जो मैंने आपको रिकमेंड किया, जिसके अंदर कोच पाक है, ये दिस इज सपोज टू बी बेस्ट ड्रग। कोच पाक आप मार्केट में लेंगे तो इसके अंदर बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो हमने इसको एक तरीके से तैयार करवाया कि एक रिकमेंडेशन दिया अपने यहाँ से कि इसको इस तरह से बनाया जाए। तो आज मार्केट में इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द प्रवेक साथी। यू कैन यूज 1 sachet twice daily टू बूस्ट योर दिस मेंटल स्टेटस। आपको डिप्रेशन से भी दूर करेगा, और जहां एंजाइटी है उस एंजाइटी को कॉम्बैट करने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस कॉम दैट इज अश्वगंधा कैप्सूल, ये आपको लाभ पहुंचाएगा। ये आपको इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, तो ये आपको एंजाइटी से दूर करेगा। और अगर आपको सिर दर्द होता है तो सिर दर्द में कोई पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। पोस्ट कोविड में एक AS40 बाम, वेरी सूदिंग मेडिसिन विद यूकलिप्टस ऑयल एंड अदर हर्बल ड्रग्स, उसको आप सिर में लगाने पे आपको इमीडिएटली लाभ मिलेगा। और कोई दवाई आपको पेन किलर लगातार इसके लिए लेने की जरूरत नहीं है। एक और समस्या मैं सामने देख रहा हूं कि लोगों को एक समस्या और आ रही है कि जिन पेशेंट्स को थोड़ा भी गठिया की शिकायत रही है या नहीं रही है, उनको आपकी रिएक्टिव अर्थराइटिस बड़ी तेजी के साथ मिल रही है। उस रिएक्टिव अर्थराइटिस में देखें कि जोड़ों में तेज दर्द हो जा रहा है। और यही नहीं, कुछ पेशेंट्स की कंडीशन ऐसी है जिसमें आप देख रहे हैं कि कोविड में आपकी रेड ब्लड सेल्स जो होती है क्लम्प कर जाती हैं, इसलिए आपको ब्लड थिनर दिया जाता है। और ये क्लम्प करने के बाद में वेन में क्लम्प करती हैं, लोअर वेन में, लोअर लेग में करती हैं। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा रेड एंड स्वॉलन फीट, घुटना थाई से लेकर के घुटने तक इतना सूजा हुआ है, पैर के तलवे का पंजे तक,
कि आप पैर उठा नहीं सकते, पेशेंट कैन नॉट मूव. आई हैव सीन 7-8 पेशेंट्स इन सच कंडीशंस, दे आर बिल्कुल बेड रिडन, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम द बेड. ये कंडीशन क्यों हुई? जब उनकी डीप वेन का वो स्टडी कराया गया, आपकी ड्रॉपलर स्टडी, तो पता लगा कि थ्रोम्बोसिस हो रही है, वेन में ऑब्स्ट्रक्शन, डी डायमर टेस्ट कराया गया. तो कहना ये चाहता हूं मैं अपने आप को, इन सारी समस्याओं से बचने के लिए प्रारंभ से ही जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इफ यू यूज इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स, either you are suffering from COVID-19 or not, as preventive remedy, then during COVID pandemic or after COVID effects, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं. और सामान्य रूप से अगर आपको बुखार रहता है, हल्का बुखार रह रहा है, टेम्परेचर थर्मामीटर में देखते नहीं है, अंदर से फीलिंग होती है कि हमको बुखार हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अमृता इस जनप्रिया, जिसे गुलूची की हम बात कर रहे हैं, गिलोय घनबटी और कैप्सूल गुलूची, बहुत अच्छे फॉर्म में प्रवेक ने बनाया कैप्सूल गुलूची. दिस कैप्सूल कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली आफ्टर लंच एंड डिनर. यह आपको अंदर से जो बुखार हो रहा है, जो फीलिंग आपको हो रही है माइल्ड फीवर वाली, उसको ये खत्म कर देगा. और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सिम्टम आपका और है, वो आपका सिम्टम होता है, इसे हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम. सारे शरीर में कहीं भी सूजन आ जाना. बड़ा आश्चर्य की बात मैं आपको बता रहा हूं कि अभी एक पेशेंट से मेरी काउंसलिंग में बात हो रही थी. शी वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, शी वाज हार्डली 44 or 45 years एज. हर हस्बैंड वाज मिलिट्री पर्सनल और वो जो है बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. कोविड-19 का सिम्टम हुआ, नेगेटिव हो गया, कोई एसिम्प्टोमेटिक थी ड्यूरिंग कोविड, और उसके बाद में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, सांस वास सब ठीक हो रहा था. सडनली जब उसका टेस्ट कराया गया कि उसको सडनली नहाने के लिए, घर का काम करने के बाद में वो नहाने बाथरूम की तरफ जा रही थी, सडनली गिर के बेहोश हो गई. जब उसको उठाया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, तो सारे जब मार्कर टेस्ट किए गए तो यूज जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी वाज हाईली रेज्ड और ऑल इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आर हाईली रेज्ड. So remember this thing, if you are asymptomatic, you are not having any problem due to COVID pandemic, COVID infection, तो अपने आप को सुरक्षित मत समझिए. अपने आप को आज से ही अपनी लाइफस्टाइल सही करिए, साथ साथ में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की औषधियां लीजिए और नुकसानदायक चीजों से बचिए. एक चीज और आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, हमारे साथ विद्यार्थी भी जुड़े हैं, टीचर्स जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जुड़ा हुआ है, तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो ओज होता है हमारे शरीर में 7 वाइटल टिश्यूज हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. इन 7 वाइटल टिश्यूज का जो एसेंस होता है उसको हम कहते हैं ओज. यही ओज बल है और यही बल को हम स्ट्रेंथ कहते हैं. यही आपकी इम्यूनिटी है, इसी को हम लोग व्याधि क्षमत्व कहते हैं आयुर्वेद में. तो इसको बढ़ाने की चीजें हैं. वो बढ़ाने की चीजें कैसी होती हैं? गुरु, शीत, मृदु, श्लक्ष, बहुलम, मधुरम, स्थिरम, प्रसन्नम, पिच्छलम, स्निग्ध, मोजो, 10 गुणम विस्मृतम. ये सारी चीजें जो ऐसी होती हैं जिनका गुण इस तरह का होता है, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, ओज को बढ़ाने वाली. और ये ओज के विपरीत गुण किसके होते हैं? विष के गुण होते हैं, विष, पॉइजन. और जो विष के 10 गुण हैं, लघु, रुचमास, विशदम, विवाह, तीक्ष्णम, विकास, सूक्ष्मम च उष्णम, अनिर्देश, रसम, 10 गुणम विषम तस गई. ये 10 विष के गुण हैं. ये 10 विशेष गुण है, 10 विशेष गुण है प्रोक्ता ते मध्य प्रतिष्ठिता. ये 10 ओज के जो विष के गुण हैं, 10 जो ओज के विपरीत होते हैं, वही विष के गुण आपके किसमें होते हैं? मध्य में होते हैं, एल्कोहल में. तो साथियों ध्यान रहे कि वह एल्कोहल अगर आप प्रयोग करेंगे तो इट विल डायरेक्टली हिट ऑन योर इम्यून सिस्टम. इट विल डेफिनेटली डिक्लाइन योर इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पावर. तो ट्राई टू अवॉइड एल्कोहल एज मच एज पॉसिबल. इसका प्रयोग आप बिल्कुल ना करें. तो ये सब चीजों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो कोविड-19 के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को व्हाइट फंगस की शिकायत होती है. मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं जिनका पेट साफ नहीं होता, मुंह में लगातार छाले हो जाते हैं. और हमारे पास बहुत से समस्या लेके पेशेंट आते हैं कि हमको वो व्हाइट फंगस तो नहीं हो रहा है जो कोविड वाला है. आप याद रखें कि प्रवेक वज्रदंती मंजन आता है, उसको सरसों के तेल में मिला के मसाज कराएं मसूड़े की, हल्के हाथ से. आप देखेंगे कि आपको अगर व्हाइट फंगस हो रहा है इनिशियल स्टेज में, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा. और मंजन के साथ में जिनको ससेप्टेबिलिटी है, बार बार छाले होते हो, वो इसका प्रयोग जरूर करें, तो उनको व्हाइट फंगस की शिकायत नहीं हो पाएगी.
और नाक में तेल डालने वाला जो मैंने नर्स से कहा उसका आप प्रयोग करें। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप होलिस्टिकली अपने आप को बचा सकते हैं। वन थिंग, अपने बात को समाप्त करने के पहले ये बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑलरेडी शिफ्टेड इट्स टारगेट फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेज टू दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज। दिस इज पैराडाइज्म शिफ्ट। इस पैराडाइज्म शिफ्ट का कारण क्या है कि अब आपके सामने कोविड पेंडेमिक इन्फेक्शियस डिसीज के रूप में आया है, लेकिन और जो बीमारियां आपकी हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कैंसर हो, अस्थमा हो या आपका आर्थराइटिस हो, ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज हैं। और इनके बारे में WHO का मानना है कि मोर देन 75% लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड। हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड? They can be prevented by following Ayurvedic lifestyle that is supposed to be ideal lifestyle. ब्राह्म मुहूर्त में सवेरे उठिए, टाइम से भोजन करिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका विचार करिए, ये ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि 5000 वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत, who is supposed to be father of surgery, he has narrated in his classical text कि प्रसंगात गा संस्पर्शा न्यासासा स भोजनात् सशय्या सनाश्चैव वस्त्रमाल्या निलेपनात् कुष्ठम ज्वरं च शोषश्च नेत्राभिषन्देव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामणधनान्दनम। You just imagine at that particular time he has narrated the mode of spread of different contagious or infectious diseases. It means he was having full information regarding the concept of the infectious diseases. In spite of that, he has not paid any attention for the concept of the antibiotics in his classics. Why? Because he believes in the probiotics, prebiotics, not in antibiotics. While you are using antibiotics, most of the natural flora, most of the useful microbes which are present in your gut, they will be spoiled. आप जानते हैं कुछ एंटीबायोटिक खाने के बाद क्या हुआ, सब लूज मोशंस हो गए। कुछ एंटीबायोटिक खाने के बाद क्या हुआ, रिबाउंड कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो हमारे यहाँ एंटीबायोटिक की बात नहीं करते, हम प्रोबायोटिक की बात करते हैं, प्रीबायोटिक की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ थी, लेकिन उन्होंने एंटीबायोटिक की बात नहीं की, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वी आर इनडायरेक्टली increasing the immunity or resistance of the individual so that the microbes will not multiply in the body and there will be no disease at all. This is our concept. And third important concept of Ayurveda is we are having the faith in individualistic approach. Each and every type of the medication cannot be recommended to each and every individual. आपको पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपसे हम कहेंगे कि आप एक गिलास दूध पी लीजिए, आपको पेट साफ हो जाएगा। दूसरे से कहते हैं नहीं आपको इससे साफ नहीं होगा, आप थोड़ा सा छोटी हरड़ का चूर्ण पीस करके गर्म पानी के साथ लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। तीसरे को कहते हैं इससे नहीं होगा, आपको त्रिफला चूर्ण पूरा खाना पड़ेगा। तो चौथे को कहते हैं इससे भी नहीं होगा, आप पंचकाल लीजिए जिसमें सेंधव, शुंठी, सौंफ, सनाई और सेवा 5 चीजें हैं, आपका पेट साफ हो जाएगा। एक पेशेंट आता है उससे कहते हैं इससे किसी से काम नहीं चलेगा, आपको तो जमाल गोटा इच्छा बेदी रस लेना पड़ेगा, तब पेट साफ होगा। Why? Because each and every individual has got its own constitution and temperament. And the medication should be given according to its own temperament, constitution, then only it will be helpful. तो हमको अपनी जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुकूल ही खान पान रखना चाहिए और उस अनुकूल ही हमको औषधि का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी पेशेंस शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पांडे जी को विशेष धन्यवाद, इन्होंने इतने अच्छी ऑडियंस को हमारे सामने प्रस्तुत किया और लोगों ने इस ज्ञान यज्ञ का आस्वादन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जो भी लोग प्रेजेंट हैं अपने कुछ क्वेरी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली तोमर सर से पूछ सकते हैं। यू ऑल आर इनवाइटेड। मैं 1 मिनट टाइम लूंगा बस। हाँ जी जी सर। हाँ यस प्लीज, जो भी पूछना चाहते हैं। शांतनु वांट टू आस्क समथिंग। शांतनु। Yes
यस सर। यस, आपका कुछ क्वेश्चन है अणु तेल पर, कुछ पूछिए सर। जैसे कि आपने बोला सर ये अणु तेल नाक में डालने के लिए जिससे कि वायरस अंदर नहीं जाएगा, उसी तरह से आपने कुछ बोला था सर माउथ में डालने के लिए, वो मैं लिख नहीं पाया सर, वो बता देते फिर से। उसमें कुछ नहीं करना है, उसके लिए सिंपल गाय का देसी घी या तिल तेल, दिल्ली का सीसामम ऑयल और काउस घी। पाधे सर प्लीज। ओके। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था, ये आपने ये अग्नि को ठीक करने के लिए, लीवर के लिए आपने कुछ दवा का बताए थे सर, एक चित्रकाद वटी और एक हिंगोष्टक चूर्ण, एक और कुछ बताए थे सर, लिख नहीं पाए थे, बताइए सर। प्रवेक लिव टैबलेट प्रवेक लिव, PRAVEKLIV। इसको दो गोली सुबह शाम लेना है सर? दो गोली सुबह शाम, आप बिफोर लंच एंड डिनर। खुराना सर प्लीज। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका एक आप जब बता रहे थे उस समय कि कभी कभी जो है किसी को थकावट से हल्का सा बुखार आ जाता है जी, तो उसके लिए कुछ आपने दवा बताई थी, मैं सुन नहीं पाया था। वो कैप्सूल गिलोय इज अवेलेबल इन द मार्केट। जी धन्यवाद सर। ओके धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सॉल्व। आशुतोष मिश्रा जी। हाँ सर, मुझे एक चीज ये पूछनी है सर, आपने बताया ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मुलेठी ये मेमोरी बूस्टर्स हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ आप डायबिटिक पेशेंट अगर है तो इसको कैसे ले सकता है? एक्चुअली ये आपको एक सबमिटेड फॉर्म में मार्केट में मिल भी जाएगी, इसे कहते हैं मेमोडिन, MEMODIN। इट इज इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट, यू कैन गेट इट। मेमोडिन MEMODIN, टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में शुगर बेस है, टैबलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं 2 गोली सुबह शाम। श्योर। सर एक और है क्वेश्चन, रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए आपने कुछ सजेस्ट किया था, वो कौन सा टैबलेट है या कैप्सूल है? रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए कैप्सूल आर्थरो ARTHRO आर्थरो 1 और 2 कैप्सूल्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, और कैप्सूल रूमा कल्प 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली लंच एंड डिनर के बाद। रूमा कल्प 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली लंच एंड डिनर के बाद, और कैप्सूल आर्थरो 2 कैप्सूल्स जस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। और लगाने के लिए आपको लगाना है तो महाबलवर्धक तेल आता है, महाबलवर्धक, इसको आप लगाइए, बहुत लाभ मिलेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। खुराना सर आप कुछ एक प्रश्न मेरा रह गया था, सॉरी दोबारा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ब्लड थिनर्स के लिए आप आयुर्वेदिक में कौन कौन से चीजें बताना? देखिए ब्लड थिनर में पार्टिकुलरली जो दवाएं दी जा रही हैं, हमने जो दवा कॉम्बिनेशन बताया, ब्लड थिनर की कंडीशन तभी डेवलप करती है ये क्लम्पिंग करने के लिए। तो हमने जो गुड़ूची बताया अपना, गुड़ूची हमारे आप में ब्लड थिनर की कंडीशन को भी कंट्रोल करती है। गुड़ूची मस्ट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ गिलोय कैप्सूल गिलोय। एक ही चीज है दोनों ना? या हल्दी वाले दूध को भी तो ब्लड थिनर हिमालय वाले उसको गुरुची नाम। हल्दी वाला दूध विशेष रूप से हमारे यहाँ एंटी एलर्जिक है, एंटी कैंसर है, एंटी अस्थमेटिक है, एंटी टसिव है, ठीक है, और ये सारे काम करता है। इसका भी ब्लड थिनर में यूज हुआ है, वहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी का दूध तो बहुत ही लाभकारी है उन लोगों के लिए जो कि आपको रेगुलरली एलर्जी से पीड़ित रहते हैं या किसी स्किन एलिमेंट से पीड़ित रहते हैं, वो हल्दी का दूध रेगुलर कोर्स में पिए। लेकिन आजकल गर्मियों के मौसम में हल्दी का दूध मात्रा कम लें, हल्दी आधा चम्मच। गिलोय और गुरुची एक ही चीज है ना? क्यों? एक ही चीज है। गिलोय इज द हिंदी नेम और गुरुची इज द संस्कृत नेम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सॉल्व। डॉक्टर सुतांक। सर रिकरेंट यूटीआई का कुछ बताइए सर, यूटीआई से परेशान है, रिकरेंट हो रहा है, हर साल हो जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आदमी बुखार आए, लेकिन इरिटेशन और सेंसेशन रह रहा है सर। देखिए इसके लिए आपको हमारे यहाँ एक टैबलेट आती है गोक्षुरादि गुगुल, ठीक है जी, गोक्षुरादि गुगुल। अगर डायबिटीज नहीं है तो गोखरू काढ़ा, गोखरू जानते हैं, गोखरू मीन्स जो आपका जो वो होता है कांटे वाला जो सीड होता है गोखरू, तो गोखरू क्वाथ के नाम से मिलता है, गोखरू काढ़ा। उस गोखरू काढ़ा को पिलाएं, ठीक है, और साथ साथ में गोखरू काढ़ा के साथ चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग जरूर करें। चंद्रप्रभा वटी 2 गोली सुबह शाम रेगुलर खिलाएं। जी सर। अच्छा सर, पोस्ट कोविड सिंड्रोम में लंग्स के लिए कौन सी दवा बताई थी? नोट करना भूल गए सर। मैंने आपको रेसिपी कल बताया और ब्रोंको टी बताया।
ब्रोंको टी, प्रिवेक कंपनी का ब्रोंको टी और रेस्पी कल्प कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह शाम। ओके सर, ओके, थैंक्स सर। ओके डॉक्टर साहब, हेलो पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। केन पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब आ रही है सर, अब आ रही है सर। बोलिए सर। कफ काफी आ रहा था। हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बोले। हाँ, तो कुछ कफ सिरप लिया गया था, एंटी एलर्जिक दवा भी लिया गया था, लेकिन कफ अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जबकि कोविड को ठीक हुए करीब महीने भर। जी सांस भी फूलता है, केवल कफ आ रहा है। हेलो पांडे सर, सांस भी फूलता है आपका? सर दोनों के साथ बता दीजिए सर। हाँ, ऐसा है कि आप जो है, मैंने कफकल्प सिरप बताया, जो कफकल्प सिरप, कफकल्प, अगर शुगर नहीं है तो कफकल्प सिरप का 4 चम्मच बराबर पानी में, गर्म पानी मिला करके सुबह शाम पिए। अगर शुगर है, आवाज आ रही है मेरी अभिषेक जी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, कर देंगे। हाँ, कफकल्प सिरप, इसको गर्म पानी में मिला के लें सुबह शाम, अगर शुगर नहीं है तो। और शुगर अगर है तो आप कफकल्प सिरप न लेके लवंगादि भटी, एक टेबलेट हमारी आती है चूसने के लिए, लवंगादि भटी, उस लवंगादि भटी की कम से कम 10 गोली दिन भर में चूसें, और साथ में तुलसी, अदरक और काली मिर्च मिला के चाय पिए। विभूति मैडम। यस सर। सर पोस्ट कोविड मुझे एक्सट्रीम लेवल पे एसिडिटी हो जाती है, और इतनी हो जाती है कि मुझे चेस्ट पेन जैसा लगने लगता है, और जब मैं एंटासिड खा लेती हूँ तो मतलब दिन में कई बार 2 या 3 खानी पड़ जाती है, और फिर बहुत सांस फूलने लगती है, क्योंकि ऐसे आई थिंक एसिडिटी के कारण ही। आप एक काम करें, हाँ जी, एक तो आप खाली पेट कम से कम रहें, नंबर 1। चाय पीना हो, चाय के पहले भी बिस्किट्स वगैरह लें या पानी पिए। और स्वर्ण सूत शेखर रस, एक आयुर्वेद दवा हमारी है, स्वर्ण सूत शेखर रस की 1 गोली, महाशंखबटी की 2 गोली, ये तीनों जो है लंच और डिनर के पहले लें, आपको 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्वर्ण सूत शेखर रस 1 गोली, महाशंखबटी 2 गोली। स्वर्ण सूद, स्वर्ण सूत शेखर, सूत SUTSHEKHAR, स्वर्ण सूत शेखर रस। ओके, 1 tablet and महाशंखबटी 2 tablets twice daily, just before and lunch, just before lunch and dinner. Okay. थैंक यू सर। सर ये जो मतलब चेस्ट और सांस लेने में जो थोड़ी सी तकलीफ होती है, और जब एसिडिटी की दवाई खा लेते हैं तो ठीक लगता है, तो ये एसिडिटी सही है या एसिडिटी के चलते है, गैस की वजह से है, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट कोविड सर सिम्टम है या अलग से कुछ हो रहा है? नहीं, पोस्ट कोविड सिम्टम है, ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा मेरा प्रश्न रह गया। हाँ सर, ये कफ उफ के लिए मैं चंद्रामृत रस लिया करता था उसके साथ, जी, तो वो ठीक कर देता था। इस समय क्योंकि मैं बाजार से नहीं उसको ले पाया, लेकिन ये बताइए, मान लीजिए डायबिटिक अगर पर्सन है तो फिर वो शहद में कैसे लेगा? नहीं, शहद नहीं लेना, उसको गर्म पानी में ले या दूध से ले, गर्म पानी से ले। और उसको ऐसा करें, पांडे जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, तो आप ऐसा करें, एक कॉम्बिनेशन बना के लें, केवल चंद्रामृत मत लीजिए, सितोपलादि, शुद्ध टंकण, चंद्रामृत और नारदी लक्ष्मी विलास, ये 4 औषधियां मैं आपको लिख के भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? ठीक है डॉक्टर, ठीक है। हाँ, उसको बना के लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा विदिन 3-4 डेज। ओके। अच्छा। जितेंद्र महतो। सर नमस्ते सर। सर मेरे फादर कोविड डीवीटी हो गया है सर। क्या हो गया है? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हाँ जी। हाँ सर अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं। उनका कल मैंने डी डाइमर भी कराया था, तो 2.62 वैल्यू आई है,
जी जी सर उपचार बताइए सर। नहीं, उपचार तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप ले रहे हैं ना? हाँ सर, एलोपैथिक चल रहा है। तो एलोपैथी चल रहा है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं। अभी अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें इंटरवेंशन मत करिए अभी। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। पारुल कटियार। पारुल सर मेरा भाई है, नमस्कार 16 सर। साल का है लगभग। मुझे रात को मतलब खांसी आती है, मतलब रात को ही खांसी आती है। हाँ, रात को 1-2 बजे होगा तो उसे खांसी आने लगती है। जी जी, देखो उसको एलर्जी है और वो अस्थमा की तरफ, घर में किसी को अस्थमा है? नहीं सर, नहीं है किसी को। हाँ, वो एलर्जिक अस्थमा की कंडीशन में जा रहे हैं, वो टाइम ही यही होता है खांसी आने का। ठीक है, तो उनको कहो, एक तो स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं सर, 16 साल का है, 10th में अभी। 10th में है, तो उसको आप ऐसा किया करिए कि आप इसको तुलसी के पत्ते का रस और अदरक का रस और शीतोपलादी चूर्ण के साथ चटाइए। शीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच और साथ में तुलसी के पत्ते का रस निकाल लें, 4-6 पत्ते का, और अदरक का 2-4 बूंद रस निकाल लें, मिला करके सुबह शाम चटाइए, ठीक हो जाएगा। सर तुलसी के पत्ते का रस और अदरक का? हाँ, अदरक का रस और शहद मिला करके शीतोपलादी चूर्ण सुबह शाम दीजिए। ठीक। शैलेंद्र शुक्ला जी, सर आपने हैंड रेज किया था, इफ यू वांट टू आस्क। Any other fellow interested to ask any question? यस सर। Yes, please. नमस्कार सर। मुझे पूछना है कि पोस्ट कोविड लंग्स लंग्स को मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? पोस्ट कोविड में लंग्स को मजबूत रखने के लिए विशेष रूप से आपका प्रयोग करना है, तो मैंने आपको बताया कि आपको च्यवनप्राश या रजत प्राश इज सपोज्ड टू बी बेस्ट मेडिकेशन फॉर दिस थिंग इफ यू आर नॉट डायबिटिक। अगर शुगर नहीं है तो रजत प्राश का प्रयोग करिए, आंख बंद करके करिए, इट्स वेरी इफेक्टिव। और सर शुगर जैसे दवा के खाने से बढ़ा हुआ था, अभी तो थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? नहीं, शुगर अगर आपको ड्यूरिंग कोविड जो है आपको स्टीरॉयड वगैरह देने की वजह से बढ़ा है, कोविड के टाइम इतनी दवा का इस्तेमाल हुआ, उससे शुगर बढ़ जाता था। तो अगर वो आपका बढ़ गया होगा स्टीरॉयड से, तो ग्रेजुअली वो नॉर्मल आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता, यू कैन टेक माय टेलीफोन नंबर फ्रॉम डॉक्टर पांडे जी, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी टेलीफोनिकली, ऑनलाइन यू कैन गेट द प्रिस्क्रिप्शन फॉर। ओके जी, ओके, सॉल राइट। एनी अदर फेलो? सर एक थोड़ा सा ये है कि पेंडेमिक का पीरियड चल ही रहा है और लोग वैक्सीनेशन के लिए, कुछ लोग आगे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं। इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो अगर किसी को चॉइस मिलती है तो कहते हैं भाई लगवा लेनी चाहिए पहले तो, बट विच इज गुड। स्पेशली ये सुनने में आया था कि जो कोविशील्ड है और यंगर एज में उसमें क्लोटिंग की टेंडेंसी होती है, सो मेनी ऑफ द डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग दैट इफ द पर्सन इज अ लेडी एंड बिलो 30 एज, उसको कोविशील्ड नहीं लेना चाहिए। तो इस बारे में कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे सर? देखिए, भारत सरकार की जो योजना है वैक्सीनेशन की, पहली बात तो ये है कि वैक्सीनेशन तो करना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है, करना ही है। और देखिए, आज वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ लोगों को कोविड हुआ, लेकिन जिनको कोविड हुआ उनको 90% लोगों को माइल्ड हुआ, जो घर पे ही ठीक हो गए, और केवल 17% लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ा लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, और रिमेनिंग पेशेंट, बहुत कम % पेशेंट ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा लेकिन लौट के वापस आ गए। तो वैक्सीन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो है ही, एंटीबॉडी फॉर्म होने में टाइम जरूर लगता है, और अपने जगह पे मेरे हिसाब से कोवैक्सीन भी अच्छी है, कोविशील्ड भी अच्छी है। अगर आपको जो अवेलेबल आपको हो रही है, आंख बंद करके उसको लगवाई, उसको सिलेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इक्वली गुड। ऐसा कहीं कोई एडवर्स रिएक्शन अभी कोई मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैंने दोनों कोविशील्ड लगाया और हमने अपने फैटर्निटी में सबको रिकमेंड भी किया, सब लोग लगा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, अनिंदर सर? हाँ, अभिषेक जी, दिस इज अनिंदर भर। सर मेरा क्वेश्चन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पोस्ट कोविड सिंड्रोम, बट अभी आज आपका स्पीच में आप एक बड़ा पोर्शन में इम्यूनिटी के बारे में बोला है, तो मेरा क्वेश्चन इम्यूनिटी के रिलेटेड है जी। अब जो कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो आने वाली है, इट मे अफेक्ट द चिल्ड्रन लार्ज नंबर, तो मेरा क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट वन और टू गुड medicine, Ayurvedic medicine
that the children may be given. क्योंकि मार्केट में बहुत सारी इम्यूनिटी रिलेटेड मेडिसिन है, बट एक या दो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन. I have already suggested in my lecture. I have told you the Kumar Kalyan Ras is one of the best remedy right from the initial age group, माने बच्चा पैदा होने से लेकर के up to the 16 years of age. Okay. Kumar Kalyan Ras. Okay. Number 1. और number 2 Arvinda Saw. That is syrup form. That can be used for each and every children to boost up the immune system. Number 1. और number 2 स्वर्ण प्राशन. इलाहाबाद में स्वर्ण प्राशन फिर शुरू हो गया है. बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराएं. 3 रेमेडीज आर बेस्ट रेमेडीज. और बच्चों की जनरल हेल्थ का ख्याल रखें. खान पान का बच्चों का विशेष ध्यान रखें. अगर बच्चा मिल्क फेड ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मदर को अपने खान पान का ध्यान रखना है, सो दैट द प्रॉपर ग्रोथ मस्ट बी देयर. इम्यूनिटी भी अपने आप ग्रो करेगी. शरीर आपने जो बताया दोनों लेना है या कोई एक लेना है? स्वर्ण प्राशन लेना है या स्वर्ण प्राशन तो जैसे आपका वैक्सीनेशन है. इट इज सपोज टू बी आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन. नंबर 1. नंबर 2 कुमार कल्याण रस एंड दिस अरविंदा सब बोथ शुड बी टेकन. दोनों लेना है. इनकी डोज भी बता दीजिए सर. कुमार कल्याण रस एज के अकॉर्डिंगली जब आप जाएंगे मार्केट में तो आपको मिलेगा, उसमें एज लिखा रहेगा, कितने साल का बच्चा है या कितने महीने का बच्चा है तो कितना लेना है. ठीक है. Accordingly, you will get the proper dose schedule over there. क्या दूसरा क्या बोला है सर? अरविंदासव means अरविंद माने होता है कमल. अरविंदासव. Okay. अरविंद आसन. अरविंदासव. आसव. Okay sir. Okay. Okay. Thank you. Shantanu, you are writing something. Can you speak your question? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर वो एंटीबॉडी बनने के लिए कैसे पता करेंगे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है नहीं बनी है आफ्टर कोविड. आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं. टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट. यस, एंटीबॉडी एस्टिमेशन है. इज देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस साइड? यस सर. यस सर. हां प्लीज. सर मुझे नमस्कार सर. मुझे कोविड हुआ था. हाँ अभी नेगेटिव आ गया सर. सर बट मेरा आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है, बोलें. यस यू आर क्लियर. यस सर. फिर कोविड सर वो लास्ट महीने नेगेटिव आ गया सर. बट ये पोस्ट कोविड मुझे ज्यादा वो चेस्ट में पेन रहता है सर. तो समटाइम्स तो राइट साइड रहता है, समटाइम लेफ्ट साइड रहता है, समटाइम मिडिल में रहता है. ये एक सर. और इधर नेक थ्रोट में भी कुछ वो सिम्टम्स आता है सर जी. और कुछ पेन जैसा. यही तो सिम्टम्स है. समटाइम्स ज्यादा मैं जस्ट 5 मिनट और ऐसा फोन पे बात करे तो भी वो टाइम पे भी कुछ वो फैटिक हो जाता है. हाँ, आपको विशेष रूप से मैंने कहा रजत प्राश का प्रयोग करिए और रेस्पिकल्प कैप्सूल लीजिए. कैप्सूल रेस्पिकल्प 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली. रेस्पिकल्प जी. Capsule Respiculp 2 capsule twice daily and Rajat Pras 1 teaspoonful twice daily before after breakfast and at bedtime with milk. ठीक है. It is more than sufficient for you. कुछ एक्सरसाइज ऐसा कुछ एक्सरसाइज करना है आपको. हल्का अनुलोम विलोम करिए. अनुलोम विलोम करिए और नाड़ी शोधन प्राणायाम धीरे धीरे करिए, अभ्यास करिए. ओके सो लाइट. और अगर सीने में जकड़ाहट रहती है आपको, खांसी तो नहीं आती? सोने में ज्यादा दिक्कत होता है सर. 1 बजे 2 बजे तक नींद नहीं आती. हाँ, नींद नहीं आती है तो उसके लिए आप सीधा सा अश्वगंधा का, मैंने कहा अश्वगंधा का प्रयोग करिए. कैप्सूल अश्वगंधा रात को लीजिए. ओके सर. ओके सो लाइट. एनी अदर क्वेश्चन? एनी फर्दर क्वेश्चन? सर ये तो गैस की अगर प्रॉब्लम है और बेली फैट को रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं? गैस की प्रॉब्लम रहती है और बेली साइज को रिड्यूस करना है. इसको गैस की प्रॉब्लम के लिए तो आप ऐसा करिए, बड़ी इलायची का बीज, बड़ी इलायची समझ रहे हैं ना, डोडा, बड़ी इलायची का बीज निकाल के तवे पे भूनिए और उसको पीस करके उसकी बराबर मात्रा में मिश्री का पाउडर मिलाइए और खाना खाने के बाद में 2 से 3 ग्राम की मात्रा, 2 ग्राम मैक्सिमम 2 ग्राम्स खाना खाने के तुरंत बाद लीजिए. आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी. और बेली कम करने के लिए बड़ी इलायची का बीज और बड़ी इलायची का बीज तवे पे भून करके पीस लीजिए. इसकी इक्वल क्वांटिटी में मिश्री पाउडर मिला लीजिए, मिश्री पिसी हुई. और मिश्री में चीनी? हाँ, मिश्री अलग से आती है. चीनी की मिश्री है ना जो दाना वाली आती है.
उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद में 2 ग्राम की मात्रा में लंच और डिनर के बाद आप ले लिया करिए, गैस नहीं बनेगी, ठीक है। और बेली कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा। पवन मुक्तासन करिए, शलभासन करिए, चक्रासन करिए, धनुरासन करिए, प्रैक्टिस करिए। 21 तारीख को आपको योगा में जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो आपको सब एक्सरसाइज बता देंगे, ठीक है। ओके सर, और कोई एक्सरसाइज? अभिषेक जी, 1 बजे से मेरा दूसरा लेक्चर लगा हुआ है। जी जी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं संस्थान के निर्देशक महोदय, ऑफिस ऑफ स्टूडेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से सभी छात्रों, फैकल्टी, अध्यापकों, स्टाफ सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रेक्षित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े, आपने सबकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, बहुत एनलाइटमेंट किया, बहुत नॉलेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में जो लोग प्रेजेंट रहे इस वेबिनार को देखने के लिए, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभिषेक जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपने किया है? जी सर, मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया है सर। तो हमारे उस पे व्हाट्सएप पे आप करा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको लिंक शेयर कर लूंगा क्योंकि काफी बड़ी फाइल रहेगी जो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कर दीजिए, टेलीग्राम पर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। मे आई लीव? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक जी, इसकी रिकॉर्डिंग जो है यदि आप मेल पर सबको ही भेज दें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा सर, मैं सबको। श्योर सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर लूज कागज लेके चले आएंगे तो फिर मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। हम सर के ही तो आयुष, आदि दिया तुमको वापस ले जा, वापस जा।